Hello bachcho, let's read the given question. And the question states that let m be the smallest positive integer such that the coefficient of x squared in the expansion of 1 plus x whole squared plus 1 plus x whole cube plus and so on up to 1 plus x whole to the power 49 plus 1 plus mx whole to the power 50 is 3n plus 1 multiplied by 51c3 for some positive integer n, then the value of n is. So the key concept to solve this question is we should know what is the formula for the binomial expansion. So binomial expansion of 1 plus x whole to the power n is given by summation of ncr x to the power r, where r is varying from 0 to n. Also, the coefficient of x to the power r in the expansion of 1 plus x whole to the power n is given by ncr. So we will use both these concepts here to solve this question. Also, we need to take care of one property, that is ncr plus ncr minus 1 is equal to n plus 1 cr. So we will use this property also to solve this question. So we have been given that sum of the coefficient of x squared in this given expression, that is 1 plus x whole square plus 1 plus x whole cube plus and so on up to 1 plus x whole to the power 49 plus 1 plus mx whole to the power 50, and sum of the coefficient of x square is 3n plus 1 multiplied by 51c3. So हमें सबसे पहले x स्क्वायर की कोफिशिएंट सारे टर्म्स से फाइंड करनी होगी. So we can write coefficient of x square in the expansion of 1 plus x whole square. तो ये क्या हो जाएगी ncr, और n की जगह पे यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या है 2. So this will be 2c2. Similarly, coefficient of x square in the expansion of 1 plus x whole cube, ये क्या हो जाएगी, अब यहाँ n की वैल्यू 3 है और r की वैल्यू 2, so this will be 3c2, और एंड सो ऑन. ऐसे ही हम सारे टर्म्स में फाइंड कर लेंगे वैल्यू. सो सबसे लास्ट टर्म है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एम एक्स होल टू द पावर 50. तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 50c2, और सिंस x के कोएफिशिएंट में m है तो x स्क्वायर जब यहाँ स्क्वायर होगी तो यहाँ पे एक टर्म m स्क्वायर भी है, मल्टीप्लाइड हो जाएगी. सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर ईच टर्म. अब जो हमें गिवन है दैट इज सम ऑफ ऑल दीज कोएफिशिएंट, सारे जो भी टर्म्स है इसकी जो सम है दैट इज इक्वल टू 3n plus 1 मल्टीप्लाइड बाई 51c3. तो अब हम इन सबके ऐड करके देखते हैं. सो द फर्स्ट टर्म इज 2c2 प्लस 3c2 प्लस 4c2 प्लस एंड सो ऑन 49c2 प्लस m स्क्वायर 50c2 is equal to 3n plus 1 51c3. Alright, so now we will solve this expression to find the value of n. So as we have studied here that there is one property, that is ncr plus ncr minus 1, this is equal to n plus 1 cr. सो यहाँ पे हम इसी प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे. सो अगर हम एक और चीज यहाँ पे देखें, जो 2c2 है, 2c2 इसकी वैल्यू होती है 1, और 3c3 की जो वैल्यू होगी दिस विल बी आल्सो 1. तो हम 2c2 को क्या कर रहे हैं 3c3 से रिप्लेस कर रहे हैं. तो वी कैन राइट दिस एज 3c3 प्लस 3c2 प्लस 4c2 प्लस एंड सो ऑन अप टू 49c2 प्लस m स्क्वायर 50c2 इज इक्वल टू 3n प्लस 1 51c3. तो अगर हम पहला दो टर्म देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ये प्रॉपर्टीज का यूज करें, देन वी विल गेट दिस एज 4c2 प्लस, so this will be 4, so this will be 4c3 because our value is 3. 4c3 plus 4c2 plus and so on up to 49c2 plus m square 50c2
is equal to 3n plus 1 51c3. अगेन इन दोनों टर्म पे अगर हम प्रॉपर्टीज अप्लाई करें देन वी विल गेट 5c3 plus and so on up to 49c2 plus m square 50c2 is equal to 3n plus 1 multiplied by 51c3. सेम अगर हम इस टर्म को अब आगे एक्सपेंड करते चले तो जो सबसे लास्ट में हमें मिलेगी दैट इज 50c3 प्लस 50c2 m स्क्वायर और ये हो जाएगी इक्वल अगेन 3n प्लस 1 51c3 के। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे 50c2 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो वी कैन राइट 50c3 प्लस 50c2 माइनस 50c2 प्लस 50c2 मल्टीप्लाइड बाई m स्क्वायर इक्वल टू 3n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 51c3। तो यहाँ पे हमने 50c2 को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया है। तो अगेन इन दोनों टर्म्स के लिए हम प्रॉपर्टीज को अप्लाई करें देन वी विल गेट 51c3 और यहाँ से अगर हम 50c2 को कॉमन ले लें देन वी विल गेट 50c2 m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, तो यहाँ से इंडिविजुअली हम 51c3 को मल्टीप्लाई करते हैं देन वी विल गेट 3n मल्टीप्लाइड बाई 51c3 प्लस 51c3। तो यहाँ से हम लोग इस 51c3 को और इस 51c3 को कैंसिल कर सकते हैं एंड देन वी विल गेट 50c2 मल्टीप्लाइड बाई m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3n मल्टीप्लाइड बाई 51c3। तो नाउ 50c2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 48 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3n मल्टीप्लाइड बाई 51c2। तो 51c2 को हम लिख सकते हैं 51 मल्टीप्लाइड बाई 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल हम लोग लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 48 फैक्टोरियल। तो यहाँ से 48 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगी, 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगी, सिमिलरली 50 फैक्टोरियल और 50 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगी एंड देन वी विल गेट m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 51। तो यहाँ से ये 3 और ये 3 भी कैंसिल हो जाएगी, सो वी विल बी लेफ्ट विथ ओनली 51 n। तो ये हमारी एक्सप्रेशन आ गई। यहाँ से हम m स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं 51 n प्लस 1। So this is our final expression. Now we have to find that value of n so that m is a perfect square. तो अब हम क्या कर रहे हैं 1 by 1 n की वैल्यू को पुट कर रहे हैं। तो अगर हम n की वैल्यू को 1 पुट करेंगे देन वी विल गेट m स्क्वायर इज इक्वल टू 52। सो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट दैट इज n इक्वल टू 2। सो m स्क्वायर की वैल्यू इस केस में कितनी हो जाएगी 102 प्लस 1 दैट इज 103। तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी कैंसिल। सो नेक्स्ट इज n इक्वल टू 3 देन m स्क्वायर विल बी इक्वल टू, तो 3 पुट किया तो 153 प्लस 1 154। सो 154 इज ऑल्सो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, सो ये भी कैंसिल हो जाएगी। 3 नहीं है, अब हम डायरेक्ट 5 पुट करके देखते हैं। सो 5 पुट करें देन वी विल गेट m स्क्वायर इज इक्वल टू 255 प्लस 1 दैट इज 256। सो 256 जो है परफेक्ट स्क्वायर है और उस केस में m की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 60। सो जो मिनिमम वैल्यू है n की, फाइनली वी कैन राइट दैट minimum value of n for which m is perfect square is equal to 60. So it's 5. So this is our final answer of the given question. I hope you understood the solution. Best of luck. Thank you.